IAPT में जो कार्य हम लोग करते हैं उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारे जो लेक्चर्स देने का जो मूल उद्देश्य है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम लोग इनको उपलब्ध करा रहे हैं। कारण बहुत स्पष्ट है कि यदि चैट बॉक्स में आप देखें तो यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, करीब करीब पूरे देश के और हिंदी बेल्ट के तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस सीरीज को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं। इसलिए हमारे जो पीपीटीज हैं वो सारी इंग्लिश में है। हम लोग टर्मिनोलॉजी फिजिक्स की सारी इंग्लिश में यूज कर रहे हैं और बातचीत, चर्चा, टॉक जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो रही है। आज का लेक्चर डॉक्टर सागर सेन, जिनका परिचय मैं पूर्व में दे चुका हूँ, सारे विद्यार्थी उनको जानते हैं और बहुत पॉपुलर। उनका पहला लेक्चर अभी तक जो है वो 1.2 के लाइक्स प्राप्त कर चुका है। ये लेक्चर हुआ था उनका 3 दिन पहले, तो ये एक अचीवमेंट है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर उषा सिंह को कि वो IAPT और हमारी इस लेक्चर सीरीज के संदर्भ में विद्यार्थियों से बात करें। डॉक्टर उषा सिंह। Thank you, sir. Thank you for inviting me. I'm very thankful to RC9 for inviting me for this lecture, for this small introduction. Good morning to all the participants and all the faculties present over here. I'm Dr. Usha Singh, Associate Professor of Physics, and also I am Treasurer of our IAPT RC9, who is conducting this series of online lectures for all of you. RC9 IAPT conducts few lectures in villages also, in schools also on experimental basis. And that helps to uplift the student. And important is RC9 conducts all this lecture free of cost to all the students. They go to Ratlam, they go to different schools of nearby Ujjain, nearby Indore, Ujjain also, Devas also. So जब IAPT 9 ने this lecture series को conduct किया, so I was very happy and glad to see that, well, so many students all over the country are coming over here and actively participating in this, and they are learning from the knowledgeable lectures. I welcome you all. And I would like to add a little bit more. As you all know, due to COVID-19 pandemic condition, we have added a new word in our vocabulary called as social distancing. I think you all are well aware of this word, social distancing, isn't it? So the world is shifting in an unprecedented way. But what I personally think, we are moving together. See, this coronavirus has an equal opportunity pathogen. It has brought all of us together on this single platform of learning. All the schools and colleges all over the country is plunged into the digital learning. And the surface tension layer of teaching in the classroom has been broken down now. No restrictions can obstruct the path of learner, even in this lockdown. Learning can happen anywhere. As you all know that where there is a will, there is a way. Don't let your challenges hold you down. Just rise above and remember that anything is possible. Now, my one personal suggestion, just to think different and excel in that. I again welcome you for the today's lecture by Dr. Sagar Sen. Enjoy the lecture. Thank you to all of you. Thank you. Thank you, Dr. Usha Singh. Now I invite Dr. Sagar Sen to deliver his lecture. Okay, so good morning to all. I'm Sagar Sen. Right now I'm assistant professor at the PG College Dhar, and we organize this event for particularly all students who are willing to learn the things. Okay, so are you getting my PPT? Are you getting my PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. So student,
I given my introduction, then now I will forward to again, means for the next slide I am going to there. Okay, and first thing is that this Kyoto is given by W.L. Bragg. Okay, uh, very important thing is that the important thing in science is not so much to obtain new fact as to discover new way, as to discover new way of thinking about it. मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप नए फैक्ट साइंस में लेके आओ, लेकिन एक सोचने का जो तरीका है उसको आप बदल सकते हो साइंस साइंस की बेटरमेंट के लिए। तो ये चीज इन्होंने क्यों कही, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन आपने नाम सभी ने सुना होगा। अगर हम बात करें एक्सरे डिफ्रैक्शन की, तो उसमें जो एक्सरे जो है वो रोंजेन ने दिया था। एक्सरे ऑलरेडी जो है डिस्कवर्ड हो चुका था जब ये ब्रैग स्लो किया गया। डिफ्रैक्शन जो टर्म है वो भी ऑलरेडी नॉन थी, ठीक है। और लावे ने जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑलरेडी शो किया था। तो ब्रेग ने ऐसा क्या किया कि उससे जो है उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली और उसके अलावा नोबेल प्राइज भी मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि फैक्ट तो ऑलरेडी जो है नॉन थे, लेकिन चीज जो नहीं थी वो क्या था कि न्यू वे ऑफ थिंकिंग थी उनकी, ठीक है। तो उन्होंने नॉर्मली जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन का आपने एन लैम्डा 2D साइन थीटा तो सभी ने सुना होगा, बट न्यू थिंग इज दैट उन्होंने जो चीज बताया वो था कि डिफ्रैक्शन को एज ए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बताया था, ठीक है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मतलब इंसिडेंट और जो आपका रिफ्लेक्शन है उनका एंगल सेम होना, उसके थ्रू जो डिफ्रैक्शन होना उसको उन्होंने स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के काम में बताया था। तो उसी वजह से जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और तब तक जो है उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसके बाद में डिफाइन किए। तो ये एक न्यू वे था थिंकिंग का उनका। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। So the crystallography is used to determine the atomic and molecular structure. तो क्रिस्टलोग्राफी को हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी एटॉमिक या मोलिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हमें जानना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्रिस्टलोग्राफी यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल कि आपको जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग जानना हो उसकी, या फिर कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी बॉन्ड लेंथ हो गया, कई सारी जो चीजें हैं जो हमें क्रिस्टल के बारे में बताना है, किसी मटेरियल के बारे में बताना है, तो उसके लिए हम जो है क्रिस्टलोग्राफी यूज करते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी में नॉर्मली क्या होता है कि ये इस तरह की स्टडी है जो कि क्या करता है कि जो मटेरियल की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उसको हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है किस तरह की प्रॉपर्टीज हम जान सकते हैं, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और मेटलर्जिकल। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सब आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे काफी कुछ डिपेंड करती है। से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक सिंगल क्रिस्टल लेता हूँ और इसके अलावा पॉली क्रिस्टल लेता हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी? तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं सिंगल क्रिस्टल लेता हूँ, पॉली क्रिस्टल लेता हूँ, तो पॉली क्रिस्टल में कई सारे ग्रेन्स होते हैं, दे आर अटैच विद ग्रेन बाउंड्रीज। तो नॉर्मली क्या है, जब और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस वजह से आती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, ठीक है, जो भी कंडक्टिविटी होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रेन बाउंड्री से स्कैटरिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उस वजह से। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो डिपेंड कर रही है आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। वहीं अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक स्ट्रक्चर की, मैं बात करता हूँ कि भैया मैग्नेटिक स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो देखिए आप, उसमें क्या है कि सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, अगर डोमेन्स जो है उसका साइज छोटा होगा, ठीक है, तो कई सारे डोमेन्स होंगे एक पर्टिकुलर क्रिस्टल्स में। तो अगर वो डोमेन्स क्रिस्टल, अगर हम कई सारे क्रिस्टल्स होंगे, तो वहां क्या होगा कि नॉर्मली जो स्पिन्स है उनके अलाइनमेंट भी काफी कम होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर वहां कोई डिफेक्ट मौजूद है, ठीक है, मान लीजिए कि कई डोमेन्स है उसके बीच में कई डिफेक्ट है, तो डोमेन वॉल रोटेशन जो है वो इतना इजी नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में। तो कहीं ना कहीं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है कोर्सिटी या फिर रेजोनेंस जो है उसको अफेक्ट करेगा। स्पेशली कोर्सिटी इफेक्ट करती है, क्योंकि जब आप कोर्सिटी मतलब क्या है कि टोटल मिला के आप जो नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो करना है आपको रिवर्स फील्ड लगा। तो जब आप रिवर्स फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं डोमेन, अगर डोमेन के बीच में कहीं डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आने की वजह से क्या होता है कि वो इतनी इजीली रोटेट नहीं करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा कि कोर्सिटी जो है वो चेंज होगी। ऑप्टिकल बैंड गैप की भी अगर हम बात करें, तो डिफेक्ट जो है वो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग, जैसे हम टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करें तो वहां पर जो है बैंड गैप एनर्जी अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, जैसे रूटाइल हो गया, एनाटस हो गया, उनके लिए बैंड गैप एनर्जी अलग अलग होती है।
तो ये क्रिस्टलोग्राफी जो है, इसमें अगर हम बात करें कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये स्पेशली जो कई सारी प्रॉपर्टीज है उनको भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ जो क्रिस्टलोग्राफी के लिए हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या क्या हम यूज करते हैं उसको डिटरमाइन के लिए एक्सरे डिफ्रेक्शन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं, न्यूट्रॉन बीम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर आप एटम का देखना है, ठीक है, तो आप एक्सरे और इलेक्ट्रॉन बीम यूज करके नॉर्मली आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख सकते हो। बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आपको देखना है, ठीक है, तो वो किससे हम देखते हैं, न्यूट्रॉन बीम डिफ्रेक्शन से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली एक्सरे जो है वो एटॉमिक क्लाउड से इंटरेक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो नॉर्मली मास कम होता है, उस वजह से सरफेस सेंसिटिव होता है। ठीक है, वहीं न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन की बात करें तो न्यूट्रॉन में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सबसे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो है, अगर किसी मटेरियल की न्यूट्रल प्रॉपर्टी आपको देखना है तो उसके लिए न्यूट्रॉन बीम यूज करते हैं। So these are basic difference between all the techniques, and that shows the diffraction pattern. Okay. Now solid metals are categorized in the three terms: crystalline, polycrystalline, and another is amorphous. So crystalline, if we are going to see the crystalline, the periodicity of the material of the atoms are attained at the whole material, whole bulk material. Okay. And in case of polycrystalline, poly means, we know the name, poly means many. ओके, तो मेनी क्रिस्टलाइन मींस कई सारे क्रिस्टल्स जो है वो आपका एक क्रिस्टल को बना रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टैकिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं तो ये एक अलग तरह का जो है वो बना रहा है, यहाँ पर ये अलग तरह के जो क्रिस्टल्स बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो है अलग तरह का जो है, जिस तरह से हमने डोमेन्स में देखा था, आपको डोमेन्स में भी मैंने बताया था कि अगर डोमेन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कई सारे डोमेन्स थे, उसमें जो है स्पिन्स अलाइंड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज आउट हम देखते हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अलग हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि टोटल जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वेक्टर सम हम लेते हैं, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में डोमेन्स के जो स्पिन्स, डोमेन्स में जो स्पिन्स है वो सब अलग अलग डायरेक्शन होता है। इसी तरह से यहाँ देख सकते हो आप कि पॉलीक्रिस्टलाइन में कई सारे प्लेन्स है, ठीक है, और उनके डायरेक्शन सबके अलग अलग है। ठीक है, और उसी के बाद अगर मैं बात करूँ अमॉर्फस में, तो अमॉर्फस में तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब एटम का जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से रेंडमली अलाइंड है। तो अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो क्रिस्टल में क्या होगा कि भाई जो पीरियोडिसिटी एटम की वो पूरे क्रिस्टल में एक जैसी रहेगी। ठीक है, और इसी के साथ में पॉलीक्रिस्टल में कई सारे क्रिस्टल्स होते हैं। इसी तरह से हम बात करें अमॉर्फस की तो इसमें रेंडमली अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं सिंगल क्रिस्टल। तो देखिए सिंगल क्रिस्टल ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसमें कि क्या होता है कि एटम का जो पीरियोडिसिटी है, नॉर्मली जो एटम की जो पीरियोडिसिटी है वो होल वॉल्यूम में रहता है। ठीक है, एटम जो है एक जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट लेंथ स्केल तक जो है एटम की जो रिपीटेशन है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, यूजिंग द ट्रांसलेशन सिमेट्री। ओके, तो दिस इज सिंगल क्रिस्टल। अगेन आई एम शोइंग द पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो कि ये कई सारे जो है वो आपके ग्रेन्स है, और ये आपके आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रेन बाउंड्रीज है। ठीक है, ये ग्रेन बाउंड्रीज से ये स्टैकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डिफरेंटली ओरिएंटेड क्रिस्टल्स है। ठीक है, टोटल अगर मैं बात करूँ सिंगल क्रिस्टल के कंपैरिजन में पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल की, तो इनकी जो क्रिस्टलाइनिटी, टोटल जो क्रिस्टलाइनिटी है वो कम होगी कंपेयर टू सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ आप ग्रेन बाउंड्रीज भी देख सकते हो, और ये ग्रेन बाउंड्रीज जो है ये नॉर्मली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू जो है कई सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन की जाती है, कई सारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल और कई सारी प्रॉपर्टीज। तो ग्रेन बाउंड्रीज जो है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें अमरफस, तो अमरफस मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक मींस क्या होता है, आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होते हैं अमरफस, इस वजह से। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि ये रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तो कई सारे इनके डिफरेंस भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मेल्टिंग पॉइंट, तो क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट वो शार्प होता है, वहीं अमरफस की बात करें तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरिएबल होता है, वेरीज करता है। और फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग होती है क्रिस्टल में, वहीं अमरफस की बात करें तो शॉर्ट रेंज ऑर्डरिंग होती है। ऑर्डरिंग मतलब कि बहुत लंबे दूरी तक जो है वो ऑर्डर जो है एक जैसा नहीं रहेगा। शॉर्ट रेंज का मतलब ये होता है अमरफस में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है तीनों के बीच में। अब अगर मुझे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानना है अच्छे से, तो हमें ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, जो हम ये आपको बता रहे हैं, ये पूरी जो टर्मिनोलॉजी है
ये सभी टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने पास कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि आज कुछ एक्सरसाइज भी हम करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये जो है लेटिस हो गया, बेसिस हो गया, यूनिट सेल हो गया, ये सब बेसिक पैरामीटर्स है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करूंगी यूनिट सेल। देखिए, आपको अगर घर बनाना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ईंट लेते हैं, ईंट के जो रिपीटेशन होती है उससे आपका जो है पूरा घर बनता है। सेम एज इट इज यहाँ पे यूनिट सेल की हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है, जिसके की रिपीटेशन से क्या होता है, तीनों डायमेंशन, 3 डायमेंशन रिपीटेशन से जो है हमारे पास क्रिस्टल जो है फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल जो है एक तरह से है, अगर किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाना है तो उसके लिए यूनिट सेल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिट सेल में जो स्पेशली अगर हम बात करें तो 6 जो पैरामीटर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम लेटिस पैरामीटर कहते हैं। लेटिस पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो आपका प्रिमिटिव एबीसी, एबीसी मतलब ये आपका जो लेटिस कांस्टेंट, ये यहाँ आप देख सकते हो, ये एबीसी, ये आपका एबी ये हो गया, और बी ये हो गया, और सी जो है आपका ये हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे लेटिस पैरामीटर होता है। और ये इंटरफेशियल एंगल है, ये इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, आपका इंटरफेशियल एंगल होगा। तो ये 6 पैरामीटर जो है ये आपका डिसाइड करता है क्रिस्टल का एक्चुअल साइज और शेप, ठीक है, यूनिट का, यूनिट सेल का। तो ये लेटिस पैरामीटर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। तो देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है लेटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पे होता है, और पर यूनिट सेल अगर मैं बात करूं तो लेटिस पॉइंट कितने होते हैं, केवल एक ही होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं यूनिट प्रिमिटिव सेल में, नॉन प्रिमिटिव सेल में, तो नॉन प्रिमिटिव सेल में मोर देन 1 जो है वो लेटिस पॉइंट होते हैं पर यूनिट सेल। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरे एग्जांपल को कि यहाँ केवल एक ही जो है वो लेटिस पॉइंट है पर यूनिट सेल, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस एग्जांपल को देखता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉर्नर पे तो है ही, इसके अलावा सेंटर पे भी है, ठीक है। तो ये नॉन प्रिमिटिव सेल है, ठीक है, जबकि ये वाला जो है आपका प्रिमिटिव सेल है, ठीक है। मतलब अगर मैं प्रिमिटिव सेल की बात करता हूँ तो आपके कॉर्नर में भी अगर सभी एटम्स है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, प्रिमिटिव सेल होगा। क्योंकि वहां से अगर हम देखेंगे, अगर एक क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में अगर आप सभी एटम जो है वो कॉर्नर पे होते हैं, और कॉर्नर से जो है वो 1/8 शेयरिंग होती है 8 एटम्स में, तो वो नॉन टोटल में आके प्रिमिटिव सेल्स कितने हो जाएंगे, वहां पे अगर मैं बात करूँ पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे लेटिस पॉइंट, तो 1 होता है। तो प्रिमिटिव सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कौन सा एग्जाम्पल होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, ठीक है। और वहीं हम बात करें कि अदर जितने भी होते हैं बीसीसी एफसीसी सभी, वो क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें क्रिस्टल को फॉर्म करना है, ठीक है, तो क्रिस्टल को फॉर्म करना है तो भैया कुछ ना कुछ तो उसका आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या है कि स्पेस लेटिस जो है उसको एक तो हम बताएंगे, उसके अलावा बेसिस बताएंगे। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने कहीं अरेंजमेंट कर रहे हो, जैसे कोई शादी है किसी में अरेंजमेंट कर रहे हो, तो वहां आप क्या करते हो कि भैया आपको सीटिंग अरेंजमेंट जैसा आपको करना है, तो सीटिंग अरेंजमेंट करना है तो आपने कुर्सियां लगा दी। अब कुर्सियों पर कोई ना कोई बैठने वाला भी होना चाहिए, तभी जाके आपके लोग भी दिख पाएंगे। उसी तरह का ये अरेंजमेंट है, जहाँ पे क्या होता है कि स्पेस लेटिस का मतलब ये होता है कि 3 डायमेंशन में, ये एक इमेजनरी कंसेप्ट है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये एक इमेजनरी कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि 3 डायमेंशन ट्रांसलेटर पीरियोडिसिटी अरेंज ऑफ पॉइंट इन स्पेस, इसको लेटिस। तो इसमें क्या होता है कि स्पेस में हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट्स है उनका क्या करते हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब आपने जो कुर्सियां थी वो आपने लगा दी, या कुर्सियां भी नहीं बोल सकते, उससे पहले की हम बात करें तो अरेंजमेंट के लिए आपने जगह तय कर ली है, भैया आपको कुर्सियां किस तरह से लगाना है, वो वाली बात है यहाँ पर सेम। और उसके उसी को यहाँ हम इस तरह से अंडरस्टैंड करें तो भैया सबसे पहले अगर आपको क्रिस्टल बनाना है तो इमेजिनरी आपने पॉइंट जो है वो सेट कर दिए है, ठीक है। उसके बाद में अगर वहां कोई बैठेगा तभी जाके तो वहां स्पेसिफाई हो पाएगा ना कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिस की जरूरत पड़ेगी। बेसिस की जरूरत मतलब ये होता है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच एसोसिएट विद द लेटिस पॉइंट, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये आपका क्या हो गया, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो हाँ यहाँ पे ये हम बात करें तो ये जो है आपकी क्या लेटिस है। लेटिस कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपका अगर ये पॉइंट करो तो इमेजिनरी पॉइंट है, ये भी ये पीरियोडिसिटी आपकी इसकी हो रही है, स्पेस में आपने केवल इन एटम्स को मतलब लेटिस पॉइंट को जो है एसोसिएट कर दिए, और उनके साथ कुछ ना कुछ आपका एटम तो होना ही चाहिए, तभी जाके तो क्रिस्टल बन पाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक या एक से ज्यादा एटम को उसके साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है, इसके साथ हमने एसोसिएट कर दिया। तो अब एसोसिएट कर दिया तो मैंने हर पॉइंट, हर जो लेटिस पॉइंट है उस पर एटम्स एसोसिएट करने के साथ में ये जो है फाइनली आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो लेटिस प्लस बेसिस जो है वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है।
तो ये बेसिक रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अब अगर मैं बात करूं क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, तो क्रिस्टल सिस्टम जो है 7 तरह के होते हैं, ठीक है। और इनके कितने लेटिस होते हैं, ब्रेवाइश लेटिस 14 होते हैं। अब देखिए ब्रेवाइश लेटिस कितने, उसका मतलब क्या होता है कि भैया जो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसके कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर पा रहे हो, उसके कितने तरीके से जो है अरेंजमेंट है, वही क्या कहलाता है, ब्रेवाइश लेटिस कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि इफ आई एम गोइंग टू सी हियर दिस इज क्यूबिक, तो क्यूबिक में जो है वो क्या होगा कि सभी जो आपके डायमेंशन है, कहने का मतलब लेटिस पैरामीटर है, वो तीनों इक्वल होते हैं। और इंटरफेसियल एंगल भी जो है वो 90 डिग्री होता है। क्यूब तो आप सभी ने देखा ही है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें, इसको हम याद करने के लिए सीटीओ एम टीटीएच से याद करते हैं। किससे, सीटीओ एम टीटीएच। देखिए कैसे थोड़ा सा इसका ट्रिकी है इसको याद करने के लिए, क्योंकि आप अगर ऐसे नॉर्मली हम बात करेंगे तो इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट है, कि नॉर्मली अगर मैं ही देखूं तो मैं ही इसको भूल जाऊंगा कि ये किस तरह से होता है। तो सीटीओएम टीटीएच जो है वो इससे आप उसको याद कर सकते हो किस तरह से। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये सीटीओएम टीटीएच में लिख देता हूँ सबसे पहले, है ना। अब देखिए ये सीटीओएम, अब देखिए सबसे पहले क्यूब में देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तीनों डायमेंशन इक्वल है, एंगल भी इनके बीच का जो 90 डिग्री है। अब टी की बात करते हैं तो टेट्रागोनल जो है इसमें क्या होगा कि आपको एक जो ये एंगल यहाँ पे था, ये जो डायमेंशन थी, इसको आपको कैंसिल आउट करनी है, ठीक है। मतलब लेटिस पैरामीटर के जो तीनों इक्वल थे उसमें एक कैंसिल किया, ठीक है। ये आपका एंगल जो है एजिटिस रहेगा। फिर उसके बाद में ट्रिक है, ठीक है, याद करने का तरीका है ना। यहाँ पर फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसको भी आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी एंगल आपके सेम होंगे। अब आपको क्या करना होगा, इसके आगे हम बात करें तो ये CTO हो गया। उसके बाद में मोनोक्लिनिक की हम बात करते हैं तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, सेम कंडीशन एज इट इज यहाँ रहेगी, ठीक है। एंगल आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो मोनोक्लिनिक में ये है। और साथ में उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे ट्राई क्लिनिक की, तो ट्राई क्लिनिक में एबीसी नॉट इक्वल ही होंगे और अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एंगल जैसे अपन ने यहाँ तो सब इक्वल थे, यहाँ से एंगल क्रॉस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा भी हमें कर देना है। तो इस तरह से जो है वो आप इसको एंगल को जो है दिखाते हो। और ट्राइगोनल और उसके बाद में हेक्सागोनल जो है वो इस तरह से। अब हमने बताया था कि टोटल मिला के 7 जो है क्रिस्टल सिस्टम है उसके ब्रेवाइश लेटिस 14 होते हैं, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल क्यूबिक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, हमें पता है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। उसी तरह से जो है टेट्रागोनल में 2 टाइप के होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये सभी टाइप है उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उनकी टोटल कितने टाइप हो सकते हैं वो चीजें तो 14 हो गए, ठीक है। सॉरी, हाँ। तो ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, इसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी है इनके यहाँ पर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है अब यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ब्रेवाइट लेटिस आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटिस पैरामीटर ओनली। लेटिस पैरामीटर कौन से थे, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। 6 लेटिस पैरामीटर है, एंगल, इंटरफेसियल एंगल और इसके अलावा लेटिस कांस्टेंट। इस 6 जो है सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। 6 आपकी जो है, इन्हीं से आप जो है ये लेटिस पैरामीटर से ही आप क्या है ब्रेवाइट लेटिस को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ सिंपल क्यूबिक, तो देखिए सिंपल क्यूबिक की हम बात करते हैं, ये अब क्यूब की हम बात करें, क्यूब में हम जो है स्पेशली सिंपल क्यूबिक देखेंगे। तो सिंपल क्यूबिक की हम बात करें तो ये क्या है, इसकी जो पैकिंग डेंसिटी हम बात करें तो काफी पुअर होती है, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे किस तरह से होती है। अभी हम पैकिंग डेंसिटी भी देखेंगे तो वहां हम बता पाएंगे कि ये पैकिंग डेंसिटी किस तरह से होती है। पैकिंग डेंसिटी काफी जो है वो पुअर होने की वजह से इसमें लेस स्टेबल होता है। केवल एक ही आपका एलिमेंट जो है पोलोनियम जो है ये शो करता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि ये जो नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हैं किसी एटम के पास। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक रेफरेंस एटम ले लिया, इसके नियरेस्ट नेबर की हम बात करें तो नियरेस्ट नेबर एक ये हो गया, फिर दूसरा आपका नियरेस्ट नेबर ये हो गया, फिर इसी तरह से हम ये हो चुका है। मतलब ये 6 अगर मैं सिंगल इस क्रिस्टल को लेता हूँ तो इसके आसपास के कितने एटम्स इसमें मौजूद है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, ठीक है। इसको हम नॉर्मली इस तरह से शो करते हैं। और अगर 3 डायमेंशन देखें तो इस तरह से हम इसको बताते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि एक एटम जो इसे मान लो ये रेफरेंस एटम है, इसके ऊपर भी एक एटम होगा, इसके बाद में नीचे भी इस तरह से है, तो उस तरफ भी है, और इस तरह से जो है इस तरफ भी होगा, इस डायरेक्शन में भी और उस डायरेक्शन में भी होगा। तो 6 जो है इसके नियरेस्ट नेबर होंगे, ठीक है। हाँ अभी ठीक। हेलो, हाँ सर। आ रही आवाज मेरी? हाँ आ रही है सर। चलो ठीक है, हाँ आ गए सभी। 1-2 सेकेंड रुक जाइए और मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट तो आ गए।
हाँ ठीक है सर, आप जो स्टार्ट कीजिए। अच्छा, तो वो सभी तो या तो भेज दीजिए वापस से रिज्वाइन करने हाँ के हो लिए। गए सर, हो गए, ऑलमोस्ट हो गए। अच्छा, हाँ, ठीक सब है। 75 हो गए करीब अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? एक मिनट। ठीक है, दिख रहा है? हेलो? Yes, sir. हाँ दिख दिख रहा रहा है, है ठीक सर, है, दिख रहा ठीक है, ठीक। है, दिख ओके रहा Yes, ओके, करूँ करूँ स्टार्ट? है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। yes, sir. ओके ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए, यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एटम्स है, अगर हम सिंपल क्यूबिक की हम बात करेंगे तो सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स है वो सभी अपने कॉर्नर्स पे होता है। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे होने की वजह से ये टोटल इनकी आठ जो कॉर्नर पर 8 एटम्स से जो है वो शेयरिंग कितनी होगी, तो 1/8 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो टोटल मिला के आपका मतलब एक जो है वो आइटम होता है पर यूनिट सेल। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करता हूँ पैकिंग डेंसिटी की। हेलो, लिसनिंग में? हेलो? यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक। Yes, तो sir. हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करता हूं मैं, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है? तो देखिए, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है, अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें, तो अगर एक कमरा हम लेते हैं, ठीक है, और उस कमरे में कितने लोग हैं जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो कमरा आपका क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। ठीक है, और साथ में अगर उसमें कितने पीपुल्स है, वो आपके क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर हमारे पास एक छोटा कमरा है, उसमें 10 लोग है, ठीक है, तो उसमें क्या, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो कमरा हो गया आपका, और उसके अलावा लोग जितने भी है वो एटम्स मान लीजिए उन्हें, तो उनका जो वॉल्यूम है वो यूनिट सेल में, तो इस हिसाब से अगर देखें तो डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ हम बात करेंगे, तो सिमिलरली उसको हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक डेंसिटी कितनी है। ठीक है, वो चीज जो है मतलब बताता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है उनका वॉल्यूम क्या है, वो चीज जो है वो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर से बताई जाती है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में हमने सबसे पहले देखा कि पर यूनिट सेल जो है कितने एटम होते हैं, तो एक होते हैं। तो यहाँ एक जो है वो किस लिए हो गया, एक एटम जो है उसका वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, तो मतलब कितने एटम है, टोटल एक है, तो उसका एटम का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ रेडियस जो है अगर मैं बात करूँ, देखिए ये टोटल जो है सॉरी, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये कितना 2r हो गया है ना, और 2r इक्वल टू कितना a है, तो r इक्वल टू कितना हो गया 0.5 a। तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब जो है एटम का जो वॉल्यूम है, उसमें हम क्या करेंगे, r की जगह 0.5 a क्यूब a लिख देंगे। ठीक है, और वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का वो कितना होता है, a क्यूब होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो हमने a क्यूब ये लिख दिया है। ठीक है, तो ये टोटल अगर मैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ निकालूंगा तो कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक के लिए 0.52 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.52% जो है सिंपल क्यूबिक में वो फिलअप होता है। ठीक है, वहीं 40 जो अगर 52% की मैं बात करूं तो फिलअप होता है, पैक्ड होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं 48%, तो 48% स्पेस जो है सिंपल क्यूबिक में खाली रहती है। ठीक है, काफी स्पेस होती है, तो ये इस वजह से लूजली पैक कहा जाता है ऐसा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, लूजली पैक। अब यहाँ हम बात करेंगे सबकी रेडियस पहले निकाल लेते हैं। वो किस लिए रेडियस निकालना जरूरी है, देखिए ऑलरेडी हमने देखा कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो एक एटम का वॉल्यूम डिवाइड बाय जो है आपका नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे कि ये जो रेडियस है यहाँ पर, ये हमने जो सिंपल क्यूबिक के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर यहाँ बीच में कोई एटम अगर यहाँ आ जाता है, ठीक है, या फिर इसके अलावा सेंटर में अगर आ जाता है, तब इनका जो है रेडियस वो ही नहीं रहेगी है ना। तो यहाँ रेडियस तब चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ जैसे देखते हैं कि बीसीसी और एफसीसी के लिए हम देखते हैं, तो उससे पहले मैं एग्जांपल लूंगा बीसीसी का। ठीक है, तो बीसीसी के लिए अगर हम बात करें तो बीसीसी में क्या होगा, ये बीसीसी है। ठीक है, सॉरी ये एफसीसी है। पहले हम एग्जांपल एफसीसी का लेंगे, फिर उसके बाद में बीसीसी का लेंगे। ठीक है, तो एफसीसी में अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल यहाँ अगर मैं बात करूँ तो रेडियस अगर मुझे निकालनी, तो एक तो जो है हाफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हाफ पोर्शन एक एटम का, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर। ठीक है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ ये पूरा एटम है, तो इसकी जो पूरे एटम की रेडियस आर ये हो गई और आर ये हो गई, तो कितनी हो गई, ये आर और आर कितनी 2r हो गई। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये रेडियस आर हो गई, तो ये टोटल रेडियस कितनी हो गई, 4r हो जाएगी।
ठीक है। और 4r इक्वल टू आप पाइथागोरस थ्योरम से जो है वो यहाँ पर निकाल सकते हो, यहाँ की भाई कितना जो है इसका रेडियस होगा। तो ये तो a हो गया और ये a हो गया। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाइथागोरस से 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4r इक्वल टू आपका 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और वहां से हम जब निकालेंगे तो 4r इक्वल टू √2a हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो रेडियस यहाँ से ये a जो है ये b जो है टोटल रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसको हमने इस तरह से लिखा। तो ये रिलेशन हो गया r और a के बीच में। सेम एज इट इज अगर मैं बीसीसी की बात करता हूँ तो बीसीसी में अब ये जो एटम है वो सेंटर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बीसीसी में जब अगर ये एटम सेंटर में है तो टोटल जो रेडियस आएगी वो क्या होगी, यहाँ से होके जाएगी। ठीक है, तो उसी बीच में अगर हम बात करें कि पूरा जो क्रिस्टल बन रहा है वो यहाँ से इस टोटल हम डालेंगे, एक तो ए ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ए ये हो गया। लेकिन ये वाली जो बीच की डिस्टेंस है वो भी हमें निकालना पड़ेगी। तो इसको जब फाइनली सोल्व करेंगे तो ये अपना 4r इक्वल टू क्या होगा, √3 है हमारे पास, इसकी रेडियस आ जाती है। अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन अब आसानी से हम निकाल सकते हैं बाकी एलिमेंट्स की। ठीक है, बाकी बीसीसी या एफसीसी की। तो देखिए बीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो बीसीसी में क्या होता है, एक सेंटर में एटम होता है। ठीक है, कॉर्नर्स पे तो एटम होते ही है, साथ में क्या होंगे, सेंटर पे भी होता है। ये देख सकते हो आप सेंटर पे, और ये कॉर्नर पे तो है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा सेंटर पे भी एक एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर पे तो आपका सेंटर पे भी है, जिसको हम 1 बोला है, मतलब एक है आपका यूनिट सेल लेटिस पॉइंट। और इसके अलावा आपको जो कॉर्नर पे हम बात करें तो वो उसी तरह से जिस तरह सिंपल क्यूबिक में शेयरिंग हुई है उसी तरह से यहाँ पे भी शेयर करेंगे कॉर्नर वाले। तो टोटल जो अगर मैं बात करूँ तो 2 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, पर यूनिट सेल की हम बात करें तो उसमें 2 एटम्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये कैलकुलेशन है जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे हम, यहाँ देखिए, तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर आपका एटम का नंबर ऑफ एटम जितने भी है उनका वॉल्यूम यूनिट सेल के। ठीक है, और इसके अलावा यूनिट सेल का वॉल्यूम ये हो गया। तो अब यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 एटम है, तो 2 एटम का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, 2 × 4/3 πr³, 2 एटम का वॉल्यूम आ जाएगा और डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब आर क्या है यहाँ पर, आर जो है वो बीसीसी के लिए अगर हम बात करें तो 4r इक्वल टू √3 है था। ठीक है, बीसीसी के लिए हमने देखा है 4r इक्वल टू √3 है ये वाला। ठीक है, तो बीसीसी के लिए जो है वो 4r इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको वैल्यू को यहाँ r की जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और जब आप फाइनली जो पैकिंग डेंसिटी इसकी निकालेंगे तो कितनी, 68%। इसका मतलब ये है कि ये जो है बीसीसी की हम बात करें तो ये ज्यादा आपका पैक्ड है कंपैरेटिवली सिंपल क्यूबिक से, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में हमने देखा था कि 52% था। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, और 48% जो है वो क्या था, एम्प्टी था। वही अगर मैं बात करूं कि बीसीसी की हम बात करें तो 68% जो है वो पैक्ड था, और इसके अलावा इसके बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो इसके 32% मान लीजिए, तो वो 32% जो है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब उसके कंपैरिजन में देखें तो पैक्ड है, लेकिन इसको भी स्टिल हम लूजली पैक्ड बोलते हैं। इसका आयरन जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चर रखता है, क्रोमियम और सभी। ये इसकी कैलकुलेशन है। सॉरी, ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एफसीसी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एफसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर पे तो सभी एटम्स होते ही है, साथ में क्या होता है कि फेसेस पे भी होते हैं। तो ये फेसेस पे हो गए। अब ये फेसेस पे आप देख सकते हो कि अगर हम एक यूनिट सेल की बात करेंगे यहाँ पर, तो पर यूनिट सेल में जो है इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो हर फेसेस पर जो है इसी तरह से आपके पास एक एटम होता है। तो फेसेस जो है वो क्या होती है आपकी, ये आपका जो पूरा अगर हम इसको बोलेंगे तो ये फेस जो है आपकी एक फेस ये हो गई। अब इस फेस पे एक एटम है, तो सिमिलरली जो है ये हम देख सकते हैं, सिमिलरली इस फेस पे भी होगा। ये फेस ये आप देख लीजिए, ये वाली है, ये फेस ये वाली है, इस तरह से ऊपर वाली फेस, नीचे वाली फेस। तो टोटल कितने, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, एक ऊपर वाली ये वाला क्या है, ऊपर वाले के लिए हाइट, और ये पीछे वाले के लिए एक एटम। तो 6 फेसेस है। तो 6 फेसेस में ये देख सकते हैं आधा आइटम जो है वो शेयर हो रहा है, तो कितना होगा, 6 × 1/2 हो जाएगा। और क्या होगा, इसके अलावा जो कॉर्नर पे है वो तो हम देख ही चुके हैं, सिंपल क्यूबिक में था, बीसीसी में था, तो उसी तरह से 8 × 1/8। और शेयरिंग जो है अगर फेस की बात करें तो 6 × 1/2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 एटम पर यूनिट सेल हो जाते हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि पर यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में 1, और बीसीसी में 2, और एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 1 2 का 4 जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिखाई दे रहा है, पर यूनिट सेल सिंपल क्यूब, बीसीसी और एफसीसी इसमें होता है। ठीक है, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो गए। अब हम देख सकते हैं पर यूनिट सेल जो है एटम्स की संख्या यहाँ बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है डेंसिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी यहाँ पर।
तो डेंसिटी जो है वो देख सकते हैं 4 एटम का वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक में 1 एटम का वॉल्यूम लिया था, बीसीसी में 2 एटम का वॉल्यूम लिया था, क्योंकि यूनिट सेल में उतने एटम्स है उसमें, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एफसीसी की बात करूँ तो इसमें 4 एटम्स है, तो 4 एटम, वी हैव 4 एटम्स हियर and the volume we will calculate by the 4 atoms volume and divide by unit cell volume. Okay, so here we can see this is the packing fraction, ठीक है। तो यहाँ 4 एटम का जो है वॉल्यूम आ जाएगा, डिवाइड बाय ए क्यूब हो जाएगा। ओके, सो हियर वी कैन सी 4 इंटू, मतलब उसी वही कैलकुलेशन है पूरा। आर का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 4r इक्वल टू √2a हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन वहाँ देख चुके हैं, ठीक है। रेडियस के लिए हमने जो लगेगा, तो 4r इक्वल टू √2a इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद में ये वैल्यू आर की वैल्यू जो है हम यहाँ पुटअप कर देंगे, और उसके अलावा ए के टर्म में इसको लिखेंगे, और ए की यूनिट सेल का वॉल्यूम है तो ये डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली जो हमें एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगी वो 74% मिलेगी। तो इसका मतलब ये आप देख ही चुके हैं कि भाई टोटल मैंने बताया कि 1 सिंपल क्यूबिक में होता है, 2 एटम जो है वो बीसीसी में होते हैं, 4 एटम जो है वो एफसीसी में होता है। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 एटम जो है वो लेटिस पॉइंट जो है वो होते हैं इसमें एफसीसी में। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबिक तो 52%, 68% बीसीसी और 74% जो है वो एफसीसी में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो काफी तरह से पैक्ड है, ठीक है। और कॉपर लेड इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ थ्योरेटिकल डेंसिटी, तो डेंसिटी अगर मुझे निकालना है किसी क्रिस्टल की, अगर डेंसिटी मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। उसके लिए तो आपको सीधी सी बात है, डेंसिटी आपको चाहिए, तो डेंसिटी मास भी चाहिए आपको, वॉल्यूम भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया कि सिंपली अगर मैं बात करता हूँ तो एन जो है वो क्या है आपके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। मास की हम बात करें तो एटॉमिक वेट हमने ले लिया यहाँ पर, और वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और नॉर्मली एवोगाड्रो नंबर, कितने नंबर ऑफ एटम्स है आपके वो भी बताना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को अगर हम साथ में कैलकुलेट करेंगे तो हम थ्योरेटिकल डेंसिटी निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने कॉपर के लिए लिया, तो कॉपर जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है, एफसीसी रखता है। तो एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4। तो एन की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ए की, तो मास कितना है इसका, एटॉमिक वेट जो है 63.55 है, तो इसको हम ए की जगह ये रख देंगे। वॉल्यूम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए क्यूब से हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा कि एफसीसी के लिए 4r इक्वल टू √2a होता है, ठीक है। तो वहां से जब हम आर और ए के बीच में जो रिलेशन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए की जगह हम वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि हम ये सब पूरी एटॉमिक रेडियस दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको ए क्यूब में हम यहाँ रख देंगे। तो जब यह वैल्यू वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, और वॉल्यूम मिलने के बाद में हम यहाँ सभी वैल्यू जब रखेंगे एवोगाड्रो नंबर, तो सही जब ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो इस तरह से हम जो है थ्योरेटिकल डेंसिटी ये निकाल सकते हैं। और कंपैरिजन अगर उसका करेंगे तो काफी कम जो है वो डिफरेंस है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल से। तो इस तरह से हम थ्योरेटिकल डेंसिटी निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ मेटल क्लासेस। तो if I am going to see what will be the density of metal, ceramic and polymer, okay, if I am comparing the all things okay together, so we can see metal की जो density है वो ज्यादा होती है। देखिए क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हम बात करें metals की तो they are closely packed structure, they are making closely packed structure, okay। तो जब closely packed structure होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वैसे ही डेंसिटी उनकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और लार्ज एटॉमिक मास होता है, क्योंकि डेंसिटी इज डिपेंड ऑन द मास, ओके। तो इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल। तो डेंसिटी जो है वो अगर हम बात करें तो इट इज मच मोर फॉर द मेटल, ओके। इफ आई एम कंपेयरिंग टू सिरामिक, सिरामिक है कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, एंड एज वेल एज दे आर फाइंड इन द लाइटर एलिमेंट। तो जहां मास जो है अगर एटॉमिक मास कम है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी कम है। तो ये इसकी अगर हम बात करें तो सिरामिक जो है इट इज less denser as compared to metal, okay। if I am comparing to polymer, तो polymer की हम बात करें तो polymer जो है कार्बन, हाइड्रोजन और इस तरह के जो ऑक्सीजन और इन सब से मिलकर बना होता है। तो इनके एटॉमिक मास हम देख सकते हैं काफी कम है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी डेंसिटी भी जो है काफी कम है एज कम्पेयर टू मेटल और सिरामिक, ओके। तो दिस इज द बेसिक, यहाँ आप देख सकते हो डेंसिटी विद डिफरेंट मटेरियल्स। तो वी कैन सी मेटल हैव अ लार्जर डेंसिटी हियर, ये वाला, okay। Then after ceramic material, this zirconium, aluminum oxide and diamond, these are the ceramic, and then after this is the polymer elements, polymers, uh,
compounds, and they have less density comparing to the two others. Okay, there we can see this is the composite material. So this basic difference between them. And now we will move to the direction and plane in the crystal. देखिए आपको बहुत सिंपल सी बात है कि अगर क्रिस्टल है तो उसका डायरेक्शंस भी होती है, कैसा है प्लेन्स भी है, और इनको जानना काफी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इन क्रिस्टल एटम्स आर रेगुलरली अरेंज इन ए स्पेस सच दैट एनवायरनमेंट अबाउट एनी एटम इज सेम। सीधी सी बात है, अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा क्रिस्टल्स एटम्स का, सो द इन्वायरमेंट मैं कहीं पे भी बैठ के देखूंगा तो मुझे सभी जगह जो सिमेट्रिक इन्वायरमेंट दिखेगा। देयर एग्जिस्ट सम डायरेक्शन एंड प्लेन व्हिच कंटेन लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ एटम। ओके, बट देयर इज समथिंग कि किसी डायरेक्शन में लार्ज कंसंट्रेशन एटम्स का देख सकता है, और दैट इज पर्टिकुलरली इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू डिफाइन द concept of direction and plane, so we can see the crystallographic orientation as well as we can see the crystallography. So if I am going to see the direction, okay, so if डायरेक्शन जो है वो नॉर्मली हम अभी यहाँ एक एग्जांपल से कि दो पॉइंट जो है, ठीक है, ए लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द लेटिस इट इज कॉल्ड एज ए डायरेक्शन। अब देखिए जैसे कि यहाँ आपने एक ओरिजिन लिया है, ठीक है, अब मैं यहाँ से क्रिस्टलाइन डायरेक्शन बताऊंगा, जैसे देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि 1-2 का, है ना, या फिर इस एटम को मैं 2D है ये, ठीक है, 2D में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक एटम है, तो इसका जो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये 1 हुआ, और ये जो है 2 है, 2 ब्लॉक्स पे है, तो इसका जो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन जो है 1-2 होगा। सिमिलरली यहाँ अगर बात करें तो 1-1 होगा। ये एक नॉर्मल है हमें देखने के लिए कि आगे हम इसमें 3 डायमेंशन में हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं। देन आफ्टर वी विल सी कि जैसे यहाँ हम बात करें कि 3-2 के लिए ले, 3-2 में एक मिनट, 3-2 में हम बात करेंगे ये वाला 3-2 जो है ये है, तो इसमें क्या है, थर्ड 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक एंड अनदर 3 ब्लॉक, तो एक्स में 3 है, वाई में 2 है, तो ये 3-2 जो है यहाँ पे होगी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। सेम एज इट इज 3-1 का ये हो जाएगा। और अब अगर मैं 3D में बात करता हूँ, 3D में किस तरह से होगा देखिए, तो सबसे पहले कुछ आप कॉपी लीजिए और 2 मिनट के लिए माइक आप ऑन कर दीजिए, तो मैं बच्चों से कुछ पूछ के देखता हूँ, या फिर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मुझे बताइए। एक मिनट रुक जाइए, कमेंट बॉक्स में देखते हैं हम। हो नहीं रहा, चलिए ठीक है, छोड़िए, स्क्रीन नहीं हो रहा उसका। ओके है, यहाँ पर सबसे पहले कुछ हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन देखेंगे। चलिए अभी हम ही बता देते हैं, फिर बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 1 मतलब ये वाला जो है ये कौन सी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। यहाँ से देखते हैं, ये 0-0 सेंटर है, ये ओरिजिन है। अब सबसे पहले जो है हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन देखेंगे इस फर्स्ट वाले की, तो ये क्या है, एक्स में ही है, वाई जेड तो जो है वो इसमें है नहीं, ठीक है, तो वाई जेड एक्सिस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ये यहाँ इसका इंटरसेप्ट अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से है, परपेंडिकुलर होगा इसके, और ये कहाँ पर ए पर आके रुक रहा है, तो इसका क्या होगा क्रिस्टलोग्राफिक 1, और बाकी वाई जेड में तो 0-0 है, तो ये 1-0-0 इसकी क्रिस्टलोग्राफिक है। ए की बी की हम बात करें तो ये वाई में ही है, जेड और एक्स तो 0-0 है इसके लिए, तो बी जो है वो क्या होगा 0-1-0 इसकी क्रिस्टलोग्राफिक। अब सी की मैं बात करें, थर्ड वाली की हम बात करते हैं, तो ये क्या है आपका, इसमें थर्ड वाले के लिए देखेंगे तो देखिए थर्ड वाले में अब चीजें अलग है, ये एक्स हो गया और जेड हो गया, ये एक्स जेड डायरेक्शन में ये आपकी लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये लाइन जो हम बात करें इस लाइन की, तो ये एक्स जेड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा, जो वाई है वो इसके लिए 0 होगा, ठीक है, तो एक्स और जेड डायरेक्शन में ये 1-1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1-0-1 हो जाएगा इसका। फोर्थ वाला आप बताइए, फोर्थ वाला कहाँ पर, ये वाला फोर्थ। अब फोर्थ के लिए हम डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो देखिए अब ये किस तरह से है, एक्स में भी ये 1 पर है, वाई में भी 1 पर है, और जेड पे भी 1 पे है, क्योंकि देखिए आप यहाँ से इसको इरेज करने के लिए कौन सा बटन होता है, ये जितना भी लिखा है इरेज करने के लिए कुछ पता है आपको। तो अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि ये वाला 1-1-1 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ हम देखेंगे, उसके बाद में हम अगला एग्जांपल पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा कौन सा, ये वाला। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसको निकालना, बाकी तो काफी सिंपल थे, लेकिन अब ये वाला हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पांचवे में क्या होगा,
ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक तो ये y, ठीक है, और x प्लेन में, y x प्लेन में है, ठीक है। और इसको हम देखेंगे ये वाला जो हम देखते हैं, तो ये देखिए y पर जो है ये तो आपका x है, ठीक है, और ये आपका ये y है आपका, ठीक है, ये x है। तो यहाँ अगर बात करूं तो x में कितना कट हो रहा है, ये अगर मेरा पूरा x है तो ये आधा डिस्टेंस पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये आधा हो गया, x में तो आधा हो गया, ठीक है। y में कितना हो गया, y में तो फुल 1 ही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो ये पूरा उसी तरह से आ रहा है। तो ये 1/2 1, और z में तो कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो वो अगर इसका मैं फिर बाद में मिलर इंडाइसेस निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो आपने इंटरसेक्ट निकाले हैं, इंटरसेक्शन हमने जो निकाले हैं उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 1 2, हाँ रेसिप्रोकल, सही। तो 1 2 0 जो है रेसिप्रोकल लेकर फिर उसको हमें एलसीएम लेकर सोल्व करना है। तो 1 2 0 जो है वो डायरेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद में डायरेक्शन नंबर जो 6 है, 6 कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा हट जाता, किस कोई बटन पता है आप लोगों को जिससे पूरा मुंह रिमूव हो जाएगा? सर क्लियर कर दीजिए। सर पेन से पेन का जो सिंबल है सर वहां राइट से क्लिक करके इरेजर हो सिलेक्ट जाएगा। करना है। यहाँ कोई दिख रहा है इरेजर? हाँ यहाँ से, हाँ इरेजर, इरेजर सिलेक्ट कीजिए। हाँ, क्योंकि कचरा ज्यादा हो गया है, पता नहीं चल पा रहा है कि आप कौन से बता रहे हो, क्या है। समझ में आ रहा है आप सभी को ये चीज? ओके ओके, ठीक है। थोड़ा सा ये इमेजिनेशन इसमें ज्यादा होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब वापिस कहाँ पे अगर आना है तो पॉइंटर, तो वहीं से पेन सिलेक्ट कर लीजिए। हाइलाइटर, चलो हाइलाइटर ले लेते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब हम देखेंगे 6 वाला, ठीक है। तो 6 वाले में हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए आप इसको यहाँ से देखते हैं हम, ये वाला। और 6 वाले में अगर बात करें तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस ये है ऊपर वाली। तो जेड में तो ये पूरा फुल वहीं तक ही है, ठीक है। अब लेकिन मैं एक्स की बात करूंगा ये, और वाई की ये बात करूंगा, तो ये हाफ हाफ पे कट कर रहा है एक्स और वाई पर, ठीक है। तो एक्स और वाई पे ये जो है हाफ हाफ पे कट कर रहा है। आपको कुछ नहीं देखना है कि जो डायरेक्शन है इसका एरो है, उसका एरो को आप क्या करेंगे, वहां पे एक पॉइंट इधर खींच दीजिए, एक पॉइंट इस तरफ खींच दीजिए, और वहां से पता कर लीजिए कि कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये आधे एक्स में है, वाई में भी आधा है, और जेड में जो है फुल है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फुल। तो 1/2 और 1 होगा, तो इसमें भी उसी तरह से आपको रेसिप्रोकल लेकर एलसीएम लेना है। अब कुछ एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे ये वाली, ठीक है, कौन सा, ये वाला एग्जांपल है। अब इसमें बता पाएंगे आप कुछ, एक्स में तो कुछ भी नहीं है, 0 हो जाएगा एक्स वाला। तो अब ये क्या है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे ये जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पर, ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है आपकी, इसमें 1 पे मतलब इस जगह है। और जेड एक्सिस में भी ऊपर की तरफ ये हाइट पर है, तो ये 1 1 जो 0 1 1 इसके जो है पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको उसी तरह से रेसिप्रोकल लेकर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलर इंडाइसेस मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में आप ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन की जब आपको मिलर इंडाइसेस लेने हैं तो उसको हम दर्शाते हैं इस तरह के ब्रैकेट से, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का ब्रैकेट होगा। लेकिन जब अगर मुझे प्लेन के लिए बताऊंगा तब मुझे क्या होगा, मून लाइट जो होता है ना, मून लाइट इस तरह का, उस तरह के ब्रैकेट से मैं बताता हूँ, मून लाइट ब्रैकेट से जो है बताता हूँ उसके लिए, प्लेन्स के लिए। अब ये वाला आप बताएंगे ये इसके लिए क्या है। अब ये देखिए यहाँ पर एक तो ये हो गया, और इंटरसेक्ट पहले आप इस तरह से देख लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले इंटरसेक्शन हमें देखना है। तो आपका एक्स डायरेक्शन जो है उसमें आपका 1/2, फिर उसके बाद में एक्स मतलब ये आपका इस तरह से देखेंगे, तो ये आपका हाफ डिस्टेंस पे यहाँ बीच में देखेंगे आप, ये प्लेन इस तरह का है, ये आपका 1 हो गया, ये पूरा 1 है यहाँ तक। तो ये आधी डिस्टेंस तक जो है वो कट कर रहा है यहाँ पर, देखो इसको और ऊपर लेके जाएंगे आप, तो ये 1/2 हो गया। अब ये y में तो 1 ही है, पूरा हाथ तक आ रहा है, और z में जो है ऊपर तक पूरा है। तो 1/2 सॉरी इसमें z में जो है वो 1/2 है, ठीक है, क्योंकि आधी डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है आपको। ये z ऊपर है आपका, इस तरह का ऊपर जो z है, तो z में तो आपका हाफ ही कट कर रहा है, और x में भी हाफ कट कर रहा है, लेकिन जो y है उसमें फुल पर आ रहा है। तो ये इस तरह से हम इसका भी जो है मिलर इंडाइसेस निकालेंगे। इसमें भी आपको क्या 1/2 1 और 1/2 तो आपने इंटरसेक्शन लिए, तो उसका रेसिप्रोकल लेकर और फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए। तो ये इस तरह से हम क्रिस्टल डायरेक्शन बता पाएंगे।
तो ये क्रिस्टलाइन प्लेन अगर अब मुझे निकालना है, ये तो हमने डायरेक्शन निकालना देख लिया। अब प्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेट ऑफ, नॉर्मली हम मिलर इंडाइसेस यूज इसलिए करते हैं कि क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मिलर इंडाइसेस को यूज करते हैं। तो मिलर इंडाइसेस जो है अगर प्लेन के हम देखेंगे तो क्या है, HKL से दिए जाते हैं, ये HKL जो है, ठीक है, इससे हम देते हैं। और यहाँ मैंने बताया था मून लाइक जो है वो आपका ब्रैकेट जो है इसमें शो करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि कोई भी ब्रैकेट लगा देते हैं, तो कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये डायरेक्शन के लिए है, ठीक। ये वाला डायरेक्शन के लिए और ये किसके लिए है, प्लेन के लिए, ठीक। अब प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर हमने वही देखा जैसे डायरेक्शन में जो है उसी तरह का प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे प्लेन का अलोंग द एक्स मतलब एबीसी, ठीक है, अलोंग द एक्सिस एबीसी। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा कि एबीसी के अलोंग जो है इंटरसेप्ट करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो फिर क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा और फिर आपको उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वही एलसीएम लेकर। और फिर उसके बाद में हमको इंक्लोज इन पैरेंथेसिस, मतलब वो फिर आपने यही मैंने बताया ना जो ब्रैकेट है, जो मून लाइक ब्रैकेट जो है उसमें उसको हमको बताना पड़ेगा। अब ये एग्जांपल देखते हैं, देखिए आप। तो अब यहाँ आप देखेंगे ये आपकी कौन सी है, ये आपके एक्स डायरेक्शन है, उसमें लेटिस पैरामीटर ए है, ये वाई डायरेक्शन है, इसमें लेटिस पैरामीटर बी है, और ये आपका जेड डायरेक्शन है सी। अब आपको इंटरसेप्ट निकालना, इंटरसेप्ट करना है तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये वाला आप देखोगे, ये सबसे पहले ये कौन सा प्लेन है ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये एक्स डायरेक्शन में है यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब ए वाले पॉइंट को, ठीक है, लेटिस पैरामीटर को, साथ में ये वाई वाले को भी कर रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये ए है, ए पे कर रहा है, और ये भी ए पे बी पे कर रहा है, मतलब बी अगर क्यूब के ले लेंगे तो ए बी इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये मतलब आपका ए हो गया, और उसको अगर मैं ए को इंटीजर के फॉर्म में लिखूंगा तो 1 1 हो गया। तो 1 1 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन है, पर जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो वो कहाँ पे कट करेगा, इंफिनिटी पे कट करेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेन है, जेड वाला जो है इन दोनों के पैरेलल प्लेन है, तो यहाँ पे इंफिनिटी पे कट करेगा। तो ये हमारे पास 1 1 इंफिनिटी तो इंटरसेप्ट हो गए। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीधी सी बात है 1/1 और 1 इंफिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इनको यहाँ तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, स्मॉलेस्ट इंटीजर से आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें है। मिलर इंडाइसेस के क्या हो जाएंगे, 1 1 0 हो जाएंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि ये कौन सा ब्रैकेट है, मून लाइक ब्रैकेट है, ठीक। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। नॉर्मली देखिए आपको क्रिस्टलोग्राफी अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो डायरेक्शन और प्लेन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तभी आप जाके जो है वो क्रिस्टलोग्राफी अच्छे से देख पाएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल ये सबसे प्लेन 1 देखते हैं। ये प्लेन 1 कौन सा है, ये है ना, ये प्लेन 1 है। अब आप इसको बताएंगे ये प्लेन जो है इसका क्या होगा मिलर इंडाइसेस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपका वाई डायरेक्शन है, ठीक, ये वाई डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन तो ये थी, इस पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब इसके परपेंडिकुलर इसको कट कर रहा है ये, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपके पास कोई डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, इस पर प्लेन कट करेगा, मतलब परपेंडिकुलरली इसके ये कट कर रहा है। तो ये वाला आपका 0 1 0 हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो इसके पैरेलल होंगे एक्स और वाई। तो क्या होगा कि वो इंफिनिटी पे कट करेंगे, तो ये 0 1 0 जो है इसका जो है फर्स्ट वाले का, तो आपको पता चल गया प्लेन 1 का। अब प्लेन 2 की हम बात करते हैं। प्लेन 2 कौन सा हो गया, ये बीच वाला। आप देखिए ये जो बीच वाला है ना, ये प्लेन 2 है। बाकी रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो उससे फिर बात भी वही दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आ पाएगा कैसे ऑप्शन रिमूव इरेजर। ठीक है, अब यहाँ से हम जाते वापस ये देखते, चलिए। तो अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तो ये एक तो ये और ये वाला है, ठीक है, ये आपका सेकंड प्लेन है। अब सेकंड प्लेन जो है वो कहाँ कट कर रहा है, तो सर देखिए एक्स वाला जो है उस पर इंटरसेप्ट हो रहा है और वाई वाले पे इंटरसेप्ट हो रहा है, बाकी जेड वाले पे तो 0 है, ठीक है, मतलब इंफिनिटी पे कट करेगा। तो इंफिनिटी पे मतलब उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से एक्स वाई वाला जो प्लेन है वही केवल यहाँ पर है, तो यह 1 पे और ये भी 1 पे और बाकी 0 हो जाएगा, ठीक है, यही बात समझ में। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला कौन सा है, ये वाला आप जो देख रहे हो ट्राइंगल टाइप जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये थर्ड वाला है। अब ये थर्ड वाले में हम देखते हैं किस तरह से दिखेंगे। थर्ड वाले में ये
एक्स पे भी कट कर रहा है, वाई पे भी कट कर रहा है और जेड पे भी कट कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा होगा, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूंगा ये वाला अगला फोर्थ प्लेन की बात करूंगा तो ये फोर्थ प्लेन है। ठीक है, ये वाला और मैं अभी जो स्केच कर रहा हूँ ये फोर्थ प्लेन है। इसमें देखो आपका एक्स पे तो कट कर रहा है, ये होल पूरा ही कट कर रहा है, वाई पे भी कर रहा है, बट अब यहाँ जेड पे देखेंगे तो जेड पर जेड एक्सिस तो पूरी ये वाली है, इसके आधी डिस्टेंस पे ये कट कर रहा है। तो मतलब क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 1 और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको? तो ये एक मिनट थोड़ा मैं सब हटा देता हूँ क्योंकि ज्यादा फिर आपको समझ में नहीं आता। सर क्लियर ऑल इंक पे सिलेक्ट कर दीजिए एक साथ। होता है क्या? ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगला वाला जो है अब अगला वाला कौन सा है, फोर्थ प्लेन। देखो आप फोर्थ प्लेन कौन सा है, फोर्थ देख चुके हैं ना, फिफ्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, फिफ्थ कौन सा है, ये वाला देखिए, ये फिफ्थ प्लेन है। अब फिफ्थ प्लेन जो है, अब उसमें देखो आप, एक ये वाला हो गया पॉइंट। पहले सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख लिया कि है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता चल जाएगा तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक, ये हो गया। देखिए अब यहाँ अगर मैं बात करूंगा तो ये एक्स डायरेक्शन है, इस एक्स डायरेक्शन में आधी डिस्टेंस पे कट कर रहा है। ठीक, वाई डायरेक्शन की मैं बात करूं तो वाई डायरेक्शन पे तो ये जो है फुल है, वाई डायरेक्शन में तो यहाँ पे पूरा आपको दिखाई दे रहा है। जेड अब मैं बात करूंगा, जेड में जो है वो ये वाला देखिए यहाँ तक, तो ये देखिए आधा इसका अगर मैं बात करूं जेड का तो वो यहाँ होगा, लेकिन ये आधे से ऊपर है, ये मतलब 3/4 पोर्शन में। ठीक है, तो अब इसके जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, 1/2 1 और 3/4 पोर्शन। अब इससे आप आसानी से क्या करोगे, फिर रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेगा एलसीएम लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल है बताऊं या फिर आगे बढ़े? आगे सर। सर हाँ? आगे बढ़िए, टाइम कम है। अच्छा चलिए ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, कि सबसे पहले अगर आपको प्लेन को रिप्रेजेंट करना है तो मून लाइक ब्रैकेट से, फैमिली ऑफ प्लेन से करना है तो इससे ये वाले कल्ली वाला जो है। ठीक है, और डायरेक्शन तो ये होता है, और फैमिली ऑफ जो आपके डायरेक्शन है तो उसको इससे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए कि 100 प्लेन है, 100 प्लेन है तो इसकी फैमिली ऑफ प्लेन कौन से होंगे, 010 001, ये इस तरह के जो है आपके फैमिली प्लेन्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बताते हैं। ये हो गए। इंटरप्लेनर स्पेसिंग किसे कहते हैं, देखिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है नॉर्मली जो आपके एचकेएल जो है, ठीक है, ये आपको एचकेएल जैसे दिखाई दे रहे हैं। इंटरप्लेनर spacing between any crystallographic plane belonging to the same HKL family and is denoted by DHKL। देखिए, तो अगर मैं बात करता हूं कि ये आपका ये सिमिलर इंडाइसेस वाले हैं, इनका सेम प्लेन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस है ये डी कहलाता है। क्या कहलाता है, DHKL कहलाता है। ठीक, ये दिखाई दे रहा है। सेम इज दिस, अगर मैं ये वाली बात करूं, ये डिफरेंट प्लेन है, दूसरा प्लेन है, इनके बीच की जो DHKL है ये हो जाएगा। ओके ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक, ओके हाँ सर स्टार्ट। तो देखिए ऑर्थोरोम्बिक की हम बात, इसमें जो हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग देखा, ऑर्थोरोम्बिक के लिए देखेंगे तो 1/t 1/d स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में क्या होता है, a = b होता है, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू c होता है। ठीक, a = b बट नॉट इक्वल टू c होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a = b, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ a² हो गया, और c जो है नॉट इक्वल है, तो इस तरह से ये हमने टेट्रागोनल के लिए निकाल लिया। अब उसके बाद में क्यूबिक के लिए तो तीनों एबीसी इक्वल होते हैं, तो यहाँ 1/d² इक्वल टू ये हमारे पास ये आ जाए, मतलब d इक्वल टू a/h² प्लस k² प्लस l², ये हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन थ्रू द क्रिस्टल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है, कुछ ही बचा है बस। डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन क्या है, द लाइट रे व्हेन पास थ्रू ए शार्प एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट can form some bright region inside the geometrical shadow of the object. This is due to the bending nature of the light. It is called as a diffraction. तो डिफ्रैक्शन मतलब हमने ब्लेड वाला भी एग्जांपल एक देखा है, जिसमें भी क्या होता है, लाइट का बेंडिंग होता है फ्रॉम द शार्प एज, तो वो भी एक डिफ्रैक्शन ही है। अब मेन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जो थिकनेस ऑफ द ऑब्स्टेकल और स्लिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ,
तो मतलब जो लाइट वेवलेंथ आप ले रहे हो इंसिडेंट लाइट वेव, और जो आप ऑब्स्टेकल या जो स्लीट है उसका जो थिकनेस ले रहे हो वो आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी डिफ्रेक्शन हो पाएगा। सेम एज इट इज जो क्रिस्टल की हम बात करें, तो क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो लावे जो है 1912 में जो लावे है उन्होंने जो है डिफ्रेक्शन बताया था क्रिस्टल का, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्टल में जो थ्री डी अरेंजमेंट है उसके थ्रू जो क्या है उन्होंने क्रिस्टल का क्या बताया था, डिफ्रेक्शन बताया था। अब डिफ्रेक्शन अगर हम देख रहे हैं क्रिस्टल का, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी ये होती है कि जो वेवलेंथ है एक्सरे का वो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए एटॉमिक स्पेसिंग का, ठीक है। मतलब एटॉमिक स्पेसिंग की हम बात करें, ठीक है, और इसके साथ में अगर हम लेमडा की बात करें और जो डी है, ठीक है, वो ऑलमोस्टली कंपेरेबल होना चाहिए आपका, ठीक, 2D जो है वो ऑलमोस्टली कंपेरेबल होना चाहिए। तो ये जो है ब्रेग्स लॉ से ये जो है हमें पता चलता है कि वेवलेंथ और आपका 2D जो है ऑलमोस्टली सेम होना चाहिए, और नॉर्मल डिफ्रेक्शन के लिए कंडीशन ही है, और एक्सरे डिफ्रेक्शन के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करें कि प्रोडक्शन किस तरह से होता है एक्सरे का, तो एक्सरे के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं जिसको हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। सो अब अगर टंगस्टन फिलामेंट को अगर हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो थर्मोनिक एमिशंस के थ्रू, सॉरी यहाँ पर है ये, थर्मोनिक एमिशंस के थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन्स इज गोस टू द टारगेट मटेरियल, ठीक है। टारगेट मटेरियल क्या हो सकते हैं, मोलिब्डेनम, कॉपर, सब कुछ और कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ टंगस्टन फिलामेंट लिया है, टंगस्टन फिलामेंट इसलिए भी यूज करते हैं हम लोग क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट जो है उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो काफी हाई भी होता है, और हाई जेड मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हम टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं, और यहाँ इस फिलामेंट से जो है इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं हम टारगेट की ओर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिलामेंट से यहाँ पर मूविंग थ्रू द मूविंग टुवर्ड द टारगेट मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये टारगेट मटेरियल की तरफ आए, अब ये एनोड पे होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने रखा, फिर उसके बाद में यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या फिनोमिना होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है, ये एटम्स पर इंटरेक्ट करते हैं, एटम्स से इंटरेक्ट करने के बाद में क्या होता है, इनके कई सारे एटम्स से कई सारे सेल्स होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वो एक्साइट करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के बाद में जब उनका डी एक्साइटेशन होता है तो उससे क्या होती है, कई सारी रेडिएशन एमिट होती है, और उसी फॉर्म में जो है लगभग 1% हमें क्या होती है, एक्सरे मिलती है, बाकी जो है हीट एनर्जी जो है लॉस होता है, ठीक है। और इस तरह से जो है हमारे पास एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे ये जो एक्सरे है फिर हम यूज करते हैं डिफ्रेक्शन के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि लावे ने जो है वो डिफ्रेक्शन दिया था, उसके बाद में 1913 की हम बात करें तो उसमें क्या है, ब्रेग्स ने जो है WH ब्रेग और WH ब्रेग जो थे ये दोनों बाप बेटे ही थे, ठीक है। और इन दोनों ने जो है इसकी खोज भी की थी, और 1913 में उन्होंने जो है बताया कि किस तरह से जो है एक्सरे डिफ्रेक्शन होता है, और वो इन फॉर्म ऑफ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन उन्होंने बताया, उसी पे उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। व्हाई द क्लीवेज फेस ऑफ क्रिस्टल अपीयर टू रिफ्लेक्ट एक्सरे बीइंग एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताई। फिर इसके नॉर्मली आपके डिफ्रेक्शन के लिए हमने बताया कि लेमडा और जो आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है ऑलमोस्टली कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके जो है डिफ्रेक्शन हमारे पास हो पाता है। तो इसमें जो है लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा जो है ये ब्रेग इक्वेशंस कहलाती है। अब अगर हमें डिफ्रेक्शन देखना है यहाँ पर तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, लेमडा है, उसके बाद में डी है और साथ में थीटा है। तो डिफ्रेक्शन के लिए आपको जब जैसे क्रिस्टलोग्राफी में हम देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रेक्शन करते हैं। तो डिफ्रेक्शन में क्या होता है, 3 तरह के डिफ्रेक्शन जो है नॉर्मली यूज किए जाते हैं। लावे डिफ्रेक्शन, ठीक है, साथ में इसके अलावा लावे के अलावा जो है आपका रोटेटिंग क्रिस्टल, ये 3 मेथड है नॉर्मली, लावे मेथड, रोटेटिंग मेथड और रोटेटिंग क्रिस्टल और पाउडर मेथड। तो नॉर्मली इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेमडा और जो थीटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। लेमडा और थीटा जो है इन्हीं के जो वेरिएशन से हम क्या देख सकते हैं, इन्हीं के वेरिएशन से हम लोग डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो देखते हैं। तो या तो किसी टेक्निक में क्या होगा कि लेमडा जो है वेरी करेगा और आपका थीटा सेम रहेगा, ठीक है, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर हम कोई निकल क्रिस्टल मान ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी पर्टिकुलर स्पेसिंग होगी क्योंकि डी जो है वो आपका A/HKL पे डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्पेसिंग होगी पर्टिकुलरली, और उस स्पेसिंग को कौन देखेगा, लेमडा और थीटा की टर्म्स में हम उसको देखते हैं, ठीक है। और इनके वेरिएशन से जो है हम लोग नॉर्मली स्पेसिंग देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस तरह से जो है एक्सरे डिफ्रेक्शन होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर।
तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एक्सरे है, अगर हम कोई क्रिस्टल की बात करेंगे तो क्रिस्टल में कई सारे एटम्स होते हैं, उसमें क्या होता है एक्सरे जो है वो इंसिडेंट करेगी क्रिस्टल पर। तो क्रिस्टल के एटम्स से जो है क्या होता है इंटरेक्शन होता है उस एक्सरे का, और उसके बाद में क्या होते हैं कि जो एटम्स है वो एक्सरे का जब इंसिडेंट होती है, जब जो एटम्स है वो आपके एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और लोअर एनर्जी लेवल पे जाने के बाद में जो क्या होता है वो एक्सरे को एमिट करता है। तो जो एक्सरे एमिट होती है, ठीक है, और जो इंसिडेंट एक्सरे है, ठीक है, इसके साथ में हम कई सारे एटम्स और भी होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग सेम फिनोमिना होता है। तो आपको डिफ्रेक्शन के बाद में कुछ जो एक्सरे मिल रही है, ठीक है, उनकी जो इंटरफेरेंस पैटर्न होंगे, ठीक है, तो उनके जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उनके थ्रू जो हमें क्या है कि डिफ्रेक्शन पैटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो दो तरह के हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, अगर सेम फेस में होंगे तो वो क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, और अगर आउट ऑफ फेस होते हैं तो वो क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हैं। ठीक है, तो सेम फेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम फेस होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वहां पे आपका एम्पलीट्यूड हाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं कि नॉर्मली 2 थीटा वर्सेस जो आपका इंटेंसिटी है उसका जो एक्सरे डिफ्रेक्शन जो प्लॉट है वो हम देखते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी पॉइंट में हम इसको बताना चाहेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सरे को इंसिडेंट करते हैं क्रिस्टल में। क्रिस्टल में कई सारे एटम्स होते हैं, उन एटम्स में क्या होता है वो जो क्रिस्टल्स जो है वो जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्साइट करता है, और जब डी एक्साइटेशन होता है तो वहाँ एक्सरे एमिट होती है, और वो जो कई सारे एटम्स की जो एक्सरे एमिट होती है वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती है। और इन जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि एंगल के वर्सेस जो हम 2 थीटा ये इसमें देखते हैं 2 थीटा वर्सेस इंटेंसिटी एक्सरे डिफ्रेक्शन, तो वहाँ हमें इंटरफेरेंस पैटर्न्स जो है वो मिलते हैं, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसके थ्रू हम एक्सरे डिफ्रेक्शन करते हैं। तो ये नॉर्मल डेरिवेशन है ब्रेग्स लॉ का। तो यहाँ क्या है वही उसी तरह से हमने जो बताया था अभी कि एक्सरे जो है इंसिडेंट होती है एटम्स पर, और यहाँ से जो है आप देख रहे हो कि ये आफ्टर ऑल डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें मिलेगा यहाँ से। ये अगर दूसरे एटम्स पे जाएगी तो यहाँ से जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा इन दोनों वेव्स के बीच में जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वही हमें क्या करेगा इंटेंसिटी देता है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये यूज क्यों किया जाता है, स्पेशली आप इससे ये बता सकते हो कि आपका मटेरियल जो है वो क्रिस्टलाइन है या अमorphous है, ये भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो, उसमें आप एचकेएल पैरामीटर निकाल सकते हो, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटम में किस तरह से है वो निकाल सकते हो आप, स्ट्रेस है या स्ट्रेन है ये भी बता सकते हो, ओरिएंटेशन बता सकते हो, पॉलीक्रिस्टलाइन है या फिर सिंगल क्रिस्टल है, ये सब चीजें बता सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें बताने के लिए हम यूज करते हैं, और ये कई सारे रेफरेंस जिनसे हमने ये कंटेंट लिया है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन दिस टॉक, जो कि काफी बड़ा टॉक था ये। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। Hello. Hello. It's a very good talk, and on behalf of IAPT, I thank to Sagar sir, and I want to welcome BT Shastro sir to conclude the session. ये बहुत बढ़िया जो है वो चर्चा श्री सागर सेन सर ने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी पार्टिसिपेंट्स को क्रिस्टलोग्राफी की शुरुआत करने में बहुत मदद मिलेगी। उनके यदि कोई प्रश्न है तो वो ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर सेन। I think conclude the session. We will prepare for the next session. Okay, Sudeep sir. Okay, sir. Thank you, sir.